Assalamualaikum everyone. In today's lecture, we are going to discuss another important chapter of physiology as well as anatomy, and this chapter is about endocrinology. And I have covered all the topics of anatomy as well as physiology in this one lecture. So you can write both of these headings in both of these subject as a long question. So I have mentioned all the heading and all the subheadings of this topic, and you have to take this lecture till the last of this video. And if you have not subscribed to my channel, then subscribe it first and press the bell icon to get the notification of all the videos which I have uploaded for all the BS student as well as MBBS student, because the topic of my material is taken from the Guyton book as well as from the JP book for the physiology. And for the anatomy, I have taken these topics and these headings from the Snell's and Gray's anatomy. So therefore you must concern this video, and I have uploaded all the my videos in the form of notes and you should watch them. So let's start the today's lecture. So the first of all, you have to understand the meaning of endocrinology. So the word endocrine is due to the endocrine glands, and you know very well about the endocrine glands that these glands release their secretions and hormones directly into the blood. They are ductless. They directly need, while the exocrine glands, they release their hormones and secretions into a duct. So therefore they are exocrine gland and they have duct, so therefore they can be called as duct glands. So the word logo means to study. So in the branch of endocrinology, we are going to study the endocrine glands and all the hormones which are released by it. So first you have to define the endocrine gland, that what it is. It is synthesizing and releasing the hormones directly into the blood without any duct. So therefore it is called as ductless glands. Okay, now you have to define the importance of this gland and how, why it is important and what is the role of it in our body. So it is play important role in the homeostasis. It is maintaining the every process which is being played in our body. It also play important role in various metabolic processes. It involved in the metabolism of carbohydrate, involved in the metabolism of fat, lipids, proteins, vitamins, etc, and every part. It is a major part of our body, and without it we can't survive. You can imagine, we cannot live 3 days without these glands. They are really 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 important to us, and if they stop their secretion, then the death of patient will occur within 3 to 15 days. So that why they are really important. They are really life saving. They are really life protecting hormones. So this is its importance, because it is regulating all the functions which is played in our body. It affect only on its target cell. This is very important point, that they are specific. They only affect their target cell. They never affect on the other cells, only affect on their specific target cell. And target cell also attach the specific hormone which of it, and a specific hormone will be attached to it and the specific function will be performed. It also helps the body to overcome all the conditions. For example, stress state, when we are exercising, when our blood pressure is high, our blood pressure is low, whenever the condition it is allowing us to maintain and to bring back body to its original level. And it also help important role in the prevention of various kind of diseases. Now we discuss the function of endocrine gland, that what is its function, and we also classify it. So first function is to cell signaling, because it is releasing hormones, so it creates the connection between a cell to cell, between a cell which is producing it to the cell which is the target cell. So there is the signaling between them, and the signaling, the factor which is involved in the signaling is a hormone. So the transfer of signal from cell to cell, this is called as cell to cell signaling. It is useful for the intracellular communication, because we are communicating between the two cells.
and communicate by the chemicals which is called as chemical messenger. So the here the signal between the two cell is our chemical messenger, and this chemical messenger can be called as our hormone. So the hormone is creating the communication between the two cells. Second major role of the endocrine gland is that it releasing the chemical messengers, for example hormones and various types of hormone. For example, I have given the classification of these hormone. First is the endocrine messenger, second is the paracrine messenger, third is the autocrine messenger, fourth is the neurocrine or neural release neurotransmitter. So first is the endocrine messenger को डील करते हैं कि it is made by the endocrine gland and transported to the blood. सो ये कहाँ से बनेंगे, एंडोक्राइन ग्लैंड से बनेंगे और ब्लड में ट्रांसपोर्ट हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर डायग्राम बनी हुई देख सकते हैं, ठीक है। इस तरफ ये मैंने डायग्राम बना के रखी हुई है, ये दो सेल्स मैंने बनाए हैं। इस सेल से ये बन रहा है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड से सिक्रीशंस बन रही हैं और वो यहाँ से इस टारगेट सेल तक आ रही हैं, ठीक है। तो ये एंडोक्राइन ग्लैंड से बन रहे हैं और ब्लड में जा रहे हैं और ब्लड से फिर टारगेट सेल जो कि बहुत दूर है उससे, यहाँ पर तो मैंने छोटी सी जगह है तो वहाँ पर बना दिया, लेकिन बहुत दूर जो टारगेट सेल होगा उस पर जाके इफेक्ट करेंगे। एग्जाम्पल इसकी अगर आप देखें तो ग्रोथ हार्मोन जितने भी होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं। इंसुलिन जो है वो भी इसी टाइप के अंदर आ जाता है। दूसरी जो टाइप है वो हमारे पास पैराक्राइन मैसेंजर्स की आ जाती है। यहाँ पर क्या होता है कि एक सेल से दूसरे सेल में डिफिजन होती है। वहाँ पर था कि ब्लड में ही छोड़ दिया जाता था, कोई डिफिजन नहीं थी क्योंकि बहुत ज़्यादा फासला था हमारे उस सेल से जिसने बनाया है तो उस सेल तक जिसने टारगेट सेल है। लेकिन यहाँ पर क्या है कि बीच में का फासला बहुत कम है, सिर्फ इंटरस्टिशियल फ्लूइड है। IF से मुराद है इंटरस्टिशियल फ्लूइड, सिर्फ वो है इन दो सेलों के दरमियान में, जिसकी वजह से यहाँ पर जो मटेरियल जो बनेगा, यहाँ पर मटेरियल वो सिर्फ ICF यानी इंटरस्टिशियल फ्लूइड में आएगा और यहाँ से डिफ्यूज़ होकर दोबारा इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है। अगर आप इसकी एग्जांपल देखें तो यहाँ नीचे मैंने ये जो है ना एग्जांपल्स लिखी हुई हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन और हिस्टामाइन, ये इसकी दो एग्जांपल हैं। अगर हम ऑटोक्राइन मैसेंजर की बात करते हैं, सो ऑटोक्राइन क्या होते हैं, वर्ड ऑटो क्या है कि ऑटोमेटिक होना, ऑटोमेटिक मैसेंजर कब होते हैं, यानी इसी सेल ने इस जो मैसेंजर है या हार्मोन है उसको बनाया है और वो हार्मोन इफ़ेक्ट भी दोबारा जाके इसी सेल के ऊपर ही करता है। तो यानी अपने आप को ही करना, एक्टिवेट करना, अपने आप को ही इनहिबिट करना, सो ये अपने आप के सेल के ऊपर होता है। और जो आखिरी टाइप है हमारे पास है वो है न्यूरोक्राइन या न्यूरो रिलीज ट्रांसपोर्टर। सो ये ऐसे हार्मोन्स के टाइप्स है जिनका रिलेशन आ जाता है हमारे न्यूरॉन्स के साथ, ठीक है ना। तो इनका रिलेशन हमारे न्यूरो ट्रांसमीटर के साथ आ जाता है। इनके पास न्यूरो मस्कुलर जंक्शन है, यानी ये एक मसल है, ये वाला जो मैंने नीचे बनाया हुआ, और ये एक न्यूरॉन आ रही है। मैं इसको हाईलाइट कर देती हूँ ताकि आप इजीली इसको देख सकें। सो ये मैं इसको अब हाईलाइट कर रही हूँ आप लोगों के लिए। ये देखो, ये एक न्यूरॉन आई है और उसके नीचे ये मसल अटैच है, तो ये न्यूरो मस्कुलर जंक्शन बन गया। यहाँ से न्यूरो ट्रांसमीटर रिलीज़ होगा और फिर मसल के ऊपर अफेक्ट हो जाएगा। तो ये भी एक तरह का हमारा जो है वो रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो रहा है, हार्मोन मतलब रिलीज़ हो रहा है ना, और वो फिर आगे जाके इफ़ेक्ट कर रहा है। तो इस तरह के कौन कौन से होते हैं, एसिटाइलिन कोलिन और डोपामाइन, ये इसी की एग्जाम्पल आ जाती है, वो इसी तरह ही इफ़ेक्ट करते हैं, ठीक है। सो आई होप कि आपको ये वाला पेज समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और देखते हैं कि हमने क्या पढ़ना है। अच्छा, नाउ वी क्लासिफाई द हार्मोन ऑन अदर बेस। फॉर एग्जांपल रिलीज ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड के वो हार्मोन जो रिलीज़ होते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से, रिलीज ऑफ हार्मोन विच रिलीज बाय गोनेड्स, कुछ रिलीज़ होते हैं जो किसी और ऑर्गन से रिलीज़ होते हैं, कुछ लोकल हार्मोन्स होते हैं। अब हम इन सबको क्वालिफाई करेंगे कि कौन कौन से हैं। अब एंडोक्राइन ग्लैंड से जो रिलीज़ होंगे वो होंगे पिट्यूटरी ग्लैंड, आपको पता है कि ये बहुत सारे हार्मोन रिलीज़ करता है। थायराइड ग्लैंड होता है, पैराथायराइड ग्लैंड है, पेंक्रियाज है, तो ये सारे ग्लैंड्स हैं जो अपनी अपनी सिक्रीशंस रिलीज़ करते हैं। इसके अलावा अगर आप गुनेड्स की बात करें तो टेस्टिस और ओवरीज, ये दो गुनेड्स हैं जो कि सिक्रीशंस रिलीज़ करते हैं। टेस्टिस का आपको पता है कि ये मेल के अंदर होता है, जबकि ओवरी जो है वो फीमेल का पार्ट है। और टेस्टिस जो रिलीज़ करता है हार्मोन उसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, जबकि ओवरी जो रिलीज़ करता है उसे हम एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन कहते हैं।
अगर हम देखें कि कौन कौन से ऑर्गन्स हैं जो और हार्मोन्स रिलीज़ कर रहे हैं, जैसे पिनियल ग्लैंड होता है, ये हमारे ब्रेन के अंदर होता है और ये मेलाटोनिन रिलीज़ करता है। इसके अलावा अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी तो बेतहाशा हार्मोन्स रिलीज़ कर रही है, एरिथ्रोपोइटिन रिलीज़ कर रही है, थ्रोम्बोपोइटिन रिलीज़ कर रही है, रेनिन कर रही है, 1,2,5 डाइहाइड्रोक्सी कैल्सिफेरॉल रिलीज़ कर रही है, प्रोजेस्टाग्लैंडिन्स रिलीज़ कर रही है, मतलब बहुत सारे हार्मोन्स हैं। हार्ट की आप बात करें तो हार्ट भी एंटी डायूरेटिक, नेफ्रेटिक पेप्टाइड और बायोयूरेटिक पेप्टाइड इन हार्मोन्स को रिलीज़ कर रहा है। इसके अलावा अगर आप लोकल हार्मोन्स की बात करें तो प्रोस्टाग्लैंडिन, एसिटाइलकोलाइनिन, सेरोटोनिन, हिस्टामाइन, ये सारे लोकल हार्मोन्स आ जाते हैं। ठीक है, अब हम एक और बेस पे हार्मोन की क्लासिफिकेशन देखेंगे। ये हमने 3 क्लासिफिकेशंस टोटल देखनी है हार्मोन्स की। अच्छा, हार्मोन की दूसरी क्लासिफिकेशन उन हार्मोन्स की नेचर के ऊपर की हुई है, जैसे कुछ होते हैं जो स्टेरॉयड नेचर के होते हैं, कुछ प्रोटीन्स हार्मोन हैं, कुछ अमाइनो एसिड्स हार्मोन है। तो अगर हम स्टेरॉयड की बात करें तो ये जो स्टेरॉयड से जितने भी बन के मिले होते हैं हार्मोन, ये कोलेस्ट्रॉल से मिलके बने होते हैं। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल एक स्टेरॉयड ही है। सो ये कोलेस्ट्रॉल के डेरिवेटिव्स कहलाते हैं, क्योंकि उसी में ही कुछ मॉडिफिकेशन करते हैं हम और ये हार्मोन्स बन जाते हैं। अब कौन कौन से ऐसे पार्ट हैं हमारी बॉडी के अंदर जो ये स्टेरॉयडल हार्मोन रिलीज़ कर रहे हैं। आपका एड्रेनल कॉर्टेक्स, ठीक है, ये एड्रेनल ग्लैंड के अंदर जो अपर उसका पोर्शन होता है ना, उसको हम एड्रेनल कॉर्टेक्स कहते हैं और वहाँ से हमारा स्टेरॉयडल हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं। अब उसकी एग्जांपल क्या क्या है, एल्डोस्टेरोन, कोर्टिसोल, कोर्टिकोस्टेरोन, ये सारे वो हार्मोन हैं जो यहाँ से रिलीज़ होते हैं। अगर हम गोनेड्स की बात करें तो मैंने आपको पहले भी कहा था कि गोनेड्स हमारे 2 हैं, टेस्टिस और ओवरीज। तो इनसे जो जो हार्मोन जैसे टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, तो ये सारे भी स्टेरॉयडल नेचर के हैं। इस तरह प्लेसेंटा से भी कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज़ होते हैं ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, तो वो भी स्टेरॉयडल नेचर के होते हैं। अगर हम प्रोटीन हार्मोन, कुछ हार्मोन होते हैं जो प्रोटीन नेचर के होते हैं, यानी वो पेप्टाइड से मिलके बने होते हैं। ठीक है, ये कोलेस्ट्रॉल से मिलके बने हुए थे, ये पेप्टाइड से मिलके बने होते हैं। एग्जांपल इसकी क्या है, पिट्यूटरी ग्लैंड, पैराथायरॉयड ग्लैंड, पैंक्रियाज। तो पिट्यूटरी ग्लैंड का आपको पता है कि इसमें से तो बहुत हार्मोन रिलीज होते हैं, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एडिनोकोट्रोफिक हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ये सारे हार्मोन्स हमारे प्रोटीन नेचर के हैं। पैराथायरॉयड हार्मोन से पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज़ होता है और वो कैल्शियम के लिए उसके मेटाबॉलिज्म में रोल प्ले करता है। पैंक्रियाज, इंसुलिन और ग्लूकागोन, ये 2 इम्पोर्टेंट हार्मोन्स हैं, ये दोनों भी प्रोटीन नेचर के हैं। अब तीसरी एक और हार्मोन की क्लासिफिकेशन आती है और वो क्लासिफिकेशन है अमाइनो एसिड्स की बेस पे। कुछ हमारे हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो अमाइनो एसिड्स से मिलके बने होते हैं, अमाइनो एसिड्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। और ज़्यादातर कौन सा अमाइनो एसिड बनाता है, टायरोसिन। टायरोसिन एक ऐसा अमाइनो, एक एरोमेटिक अमाइनो एसिड है जिसके अंदर बेंजीन की रिंग की फॉर्म में जो है ना स्ट्रक्चर होता है। सो उनसे ये उसी अमाइनो एसिड से ये हार्मोन बनते हैं, मतलब उसी की मॉडिफिकेशन करके हम ये हार्मोन्स बना रहे होते हैं। और इसके अलावा इसमें क्या-क्या एग्ज़ाम्पल आती हैं, थायराइड ग्लैंड जो हमारा है ना, उसमें से 2 सेक्रेशन रिलीज़ होती हैं, T4 और T3, ठीक है? ये दोनों अमाइनो एसिड डेरिवेटिव हैं। इसी तरह एड्रिनल मेडुला, ठीक है? एड्रिनल ग्लैंड का मैंने कहा था, एक होता है एड्रिनल कॉर्टेक्स, वो तो इधर आ गया था ना स्टेरॉयडल हार्मोन में। एक उसका नीचे वाला जो पार्ट होता है उसको हम एड्रिनल मेडुला कहते हैं और उसमें से जो हार्मोन रिलीज़ होते हैं वो 2 हैं, एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन। सो उसको एड्रेनालिन को हम एपिनेफ्रिन भी कहते हैं और नॉर एड्रेनालिन को नॉर एपिनेफ्रिन भी कहते हैं। ठीक है, सो अब हमने हार्मोन्स की क्लासिफिकेशन को कवर कर लिया है। अब हम लोग नेक्स्ट चीज़ पे चलते हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने हार्मोन के एक्शन की तरफ जाना है कि हार्मोन एक्शन किस तरह से परफॉर्म करता है। तो हार्मोन एक्ट करता है अपने टारगेट सेल के ऊपर और एक रिसेप्टर के साथ एक कम्प्लेक्स बना देता है। तो इस तरह से हार्मोन अपनी एक्टिविटी को शो करता है। और रिसेप्टर्स क्या होते हैं, रिसेप्टर लार्ज प्रोटीन है जो कि टारगेट सेल के ऊपर प्रेजेंट होती है। जैसे मैं अगर आपको बना के दिखाऊँ, ये एक सेल है, इस सेल के ऊपर आपके पास जो आपका रिसेप्टर होगा वो इस तरह से अटैच होगा और इस रिसेप्टर की एक स्पेसिफिक साइट होगी। इसी साइट पे आपका जो एंजाइम है या कुछ भी है वो आके बाइंड करेगा और फिर हमारे पास एक कम्प्लेक्स बनेगा। ठीक है, तो ये हर एक हार्मोन के लिए स्पेसिफिक होता है, यानी ये नहीं है जो इसकी ये वाली जगह पे स्पेसिफिक फिक्स होगा
वही इसके साथ आके अटैच कर देगा और कोई भी आके अटैच नहीं कर सकेगा। सो इसलिए ये बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक होते हैं और सिर्फ एक हार्मोन के लिए स्पेसिफिक होते हैं, ये नहीं कि एक से ज़्यादा भी आके अटैच हो जाए। सो ओनली वन हार्मोन स्पेसिफिकली होते हैं। सो अब हम लोग नेक्स्ट पेज पे चलते हैं और वहाँ पर हम लोग देखते हैं कि लोकेशन क्या है रिसेप्टर की और किस तरह ये कम्प्लेक्स बना रहे हैं, फिर हम इनका मैकेनिज़्म को स्टडी करेंगे, हर चीज़ स्टडी करेंगे, ठीक है। सो अभी तक आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो फ़ौरन से जाएँ, जल्दी से प्रेस बटन बताएँ, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें ताकि मैं आपके लिए और इससे ज़्यादा अच्छा कंटेंट ला सकूँ, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि ये रिसेप्टर होते कहाँ हैं, मतलब टारगेट सेल पे हमने कहा ठीक है भाई टारगेट सेल पे होते हैं, पर टारगेट सेल में भी कोई लोकेशन होगी, मतलब कहाँ है, मेम्ब्रेन के ऊपर हैं, कहाँ है। तो इसकी 3 लोकेशंस हो सकती हैं, या तो ये सेल मेम्ब्रेन होगा टारगेट सेल की सेल मेम्ब्रेन पे, या उसके साइटोप्लाज्म में, या उसके न्यूक्लियस में होगा। ये आप डायग्राम देखो, ये मैंने एक सेल बनाया हुआ है, ये सेल की मेम्ब्रेन के ऊपर एक रिसेप्टर है ब्लू कलर का, उसके साथ रेड कलर का एक हार्मोन अटैच हो रहा है। अगर आप ये देखो तो ये एक सेल का न्यूक्लियस है और इस न्यूक्लियस के ऊपर ये रिसेप्टर मैंने ब्लू कलर के रिसेप्टर्स हैं और ये ब्लैक कलर का जो है ये हमारा हार्मोन आके अटैच हुआ है। अगर आप ये देखो तो ये ब्लू कलर का एक साइटोप्लाज्मिक हमारे पास रिसेप्टर है, उसके साथ ये एक हार्मोन आके अटैच हो रहा है। सो इस तरह से रिसेप्टर की लोकेशन भी स्पेसिफिक है, वो कहीं पर भी हो सकता है, वो सेल मेम्ब्रेन में होगा, वो साइटोप्लाज्म में होगा। सो अब क्या करना होगा, किसी भी हार्मोन को इस सेल के अंदर डिफ्यूज़ होना पड़ेगा, फिर जाके उसके साथ बाइंड होना पड़ेगा। सेल के अंदर डिफ्यूज़ होगा, फिर जाके वो इस न्यूक्लियस वाली जगह पे बाइंड अप होगा। सो ये भी चीज़ बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक है। अब जब वो बाइंड होगा तो उसने एक कम्प्लेक्स बनाना है और उस कम्प्लेक्स को हम हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स कहते हैं। हार्मोन कंबाइन करता है रिसेप्टर के साथ एक स्पेसिफिक साइट के ऊपर और एक कम्प्लेक्स बना देता है, और इस वजह से अब फिर जब ये कम्प्लेक्स बन जाता है उसके बाद जो है हम अपना जाके जो एक डिज़ायर फंक्शन हमने करना है वो परफॉर्म होता है, ठीक है। अब मैकेनिज़्म क्या है हार्मोन एक्शन का, हमने कहा ठीक है भाई कम्प्लेक्स बन गया है। अब कम्प्लेक्स बनने के बाद भी कुछ होगा या नहीं, ठीक है ना, उसके बाद भी तो देखिए हमने सिर्फ कम्प्लेक्स तक बना के छोड़ नहीं देना काम, ठीक है ना। हमने हार्मोन पूरा ब्लड से हम लेके आए और अब हम टारगेट सेल तक पहुंच चुके हैं। टारगेट सेल के रिसेप्टर पे भी हमने बाइंड कर लिया है, उसके साथ एक कम्प्लेक्स बना लिया है। अब आगे हमने क्योंकि हमने हमने या तो किसी चीज़ को इनहिबिट करना है या हमने किसी चीज़ को प्रमोट करना है। सो उसके करने के लिए किस तरह से हमारा ये एक्शन जाता है, ये पूरा मैकेनिज़्म क्या है, वो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। सो अब 3 मैकेनिज़्म आगे फॉलो होते हैं। एक है बाय चेंजिंग द परमिएबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कि हम ये जो सेल मेम्ब्रेन है इसकी परमिएबिलिटी को चेंज कर दें। दूसरा है एक्टिवेटिंग इंट्रासेलुलर एंजाइम, कि इस सेल के अंदर कुछ इंट्रासेलुलर एंजाइम्स होंगे, इस सेल के अंदर होंगे, उनको एक्टिवेट कर दें। तीसरा है एक्टिंग ऑन द जीन्स, कि न्यूक्लियस के अंदर जीन्स होगा, उस जीन को एक्टिवेट कर लें, उसके ऊपर इफ़ेक्ट करें और फिर हम लोग अपना काम कर लें। सो एक्टिंग ऑन द जीन्स के ऊपर हमारे पास थायराइड और स्टीरॉयडल कुछ हार्मोन हैं जो कि इसी तरह ही काम करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल कंसीडर करो कि यहाँ बाहर एक थायराइडल हार्मोन पड़ा है या कोई स्टीरॉयडल हार्मोन, तो वो पहले तो इस सेल के अंदर जाएगा, ठीक है, और अंदर जाके वो देखेगा कि मैंने तो डीएनए के साथ कंबाइन करना है, तो वो इस न्यूक्लियस के अंदर चला जाएगा। इसी न्यूक्लियस के अंदर ही हमारा डीएनए छुपा बैठा है, वो फिर जाके इस पे इफ़ेक्ट करेगा और उस पे अपना एक्शन जो उसका डिज़ायर एक्शन है वो परफॉर्म करेगा। अब ये वाला तो मैकेनिज़्म हमने देख लिया कि किस तरह है। अब हम ये इन 2 मैकेनिज़्म को डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहला जो मैकेनिज़्म है वो है बाय चेंजिंग द परमेबिलिटी ऑफ सेल मेम्ब्रेन, कि हम अब देखेंगे कि हमने सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को किस तरह से चेंज करना है, ठीक है। सो एट न्यूरोमस्कुलर जंक्शन द न्यूरोट्रांसमीटर बाइंड विद द मेम्ब्रेन एंड चेंज द परमेबिलिटी बाय ओपनिंग द सोडियम चैनल। सो अब आपको पता लग गया कि किस तरह से मेम्ब्रेन अपना जो चेंज कर रहा है परमेबिलिटी को, यहाँ पर वो सोडियम की चैनल्स खोल देगा, यानी वो सोडियम को कहाँ जाने देगा, बाहर जाने देगा। और इस तरह से क्योंकि परमेबिलिटी चेंज हो जाएगी, यानी अब यहाँ से पॉजिटिव चार्ज बाहर चला गया, नेगेटिविटी अंदर क्रिएट हो जाएगी, बाहर पॉजिटिविटी आ जाएगी। तो इस तरह से परमेबिलिटी में चेंज आ गया। सो इस तरह से करने से हमारा क्या होगा कि हार्मोन सेल को पता लग जाएगा कि कोई ना कोई चेंज हुआ है और मैंने कुछ ना कुछ करना है। तो इस तरह से डिफरेंट जो एंजाइम्स होंगे सेल के अंदर वो एक्टिवेट हो जाएंगे। अब
उनकी एक्टिवेट किस तरह से होगा और उन्होंने फिर एक्टिवेटेड एंजाइम्स ने आगे क्या करना है, वो हम आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ने लगे हैं दूसरा जो हमारा था मैकेनिज़्म के एक्टिवेट करना है हमने इंट्रासेलुलर एंजाइम्स को, और फिर हमने देखना है कि किस तरह से हमारा एक्शन जो है वो परफॉर्म होगा। हार्मोन को अपने टारगेट पे एक्ट करना, इसको हम फर्स्ट मैसेंजर कहते हैं। आपने बहुत सुना होगा इस बारे में, सेकंड मैसेंजर सिस्टम, फर्स्ट मैसेंजर सिस्टम, साइक्लिक एएमपी। आज इसी लेक्चर में ही ये सारा चीज़ें भी कवर हो जाएंगी, ठीक है। मैं आपको सारी चीज़ें पढ़ाऊँगी। वैसे तो ये सेकंड मैसेंजर एक अलग लेक्चर बनता है, बट मैं इसी लेक्चर में ही कवर करवाने की कोशिश करती हूँ। वीडियो ज़रूर लंबी होगी, बट आपने इसको एंड तक देखना है, क्योंकि मैं अदर सेकेंडरी मैसेंजर्स जितने भी हैं वो भी मैं आपको करवाऊँगी। इसी तरह इनोसिटोल ट्राइफॉस्फेट वाला जो है वो भी मैं आपको करवाने वाली हूँ इसी वीडियो के लेक्चर में। एंड तक इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और चले अब हम लोग सेकंड मैसेंजर सिस्टम की तरफ शुरू करते हैं। फर्स्ट मैसेंजर यहीं तक ख़त्म हो जाता है कि हार्मोन ने टारगेट सेल के ऊपर इफ़ेक्ट किया। अब उसके बाद देखिए हमारा काम यहाँ तक ख़त्म नहीं हो जाता कि हमने पूरा मतलब जहाँ से हार्मोन बढ़ा है वहाँ से हम पूरे ब्लड से घूम के आए और हमने टारगेट सेल पे पहुँचे। अब हमारा टारगेट सेल पे पहुँचने के बाद काम ख़त्म नहीं हुआ, ठीक है, हमने और आगे काम करना है। और आगे हम काम कैसे करेंगे, हम सेकेंड मैसेंजर की तरफ जाएंगे। हम कहेंगे कि अब सेकेंड मैसेंजर तुम्हारा काम आ गया है। हम पहले वो कॉम्प्लेक्स तो बन चुका था ना, अब उसके बाद हमने क्या करना है, हमने अंदर जो इंट्रासेलुलर कुछ एंजाइम्स होंगे हमने उनकी एक्टिवेशन करवानी है, और वो एक्टिवेट होंगे तभी तो हमारा काम आगे चलेगा। एग्जांपल इसकी क्या है कि सेकंड मैसेंजर सिस्टम, ये मोस्ट कॉमन जो सेकंड मैसेंजर सिस्टम है वो हमारा साइक्लिक एएमपी वाला मैसेंजर है। ज़्यादातर मतलब हर सेल हमारा यही यूज़ कर रहा होता है। अब ये साइक्लिक मैसेंजर सिस्टम क्या चीज़ है, ये सारा आपको इसी एक डायग्राम में पता लग जाएगा, ठीक है। सब कुछ इसी एक डायग्राम में एक्सप्लेन हुआ हुआ है। आप सिर्फ इस एक डायग्राम को समझ लें, आपको बाकी सारा कॉन्सेप्ट इसका आ जाएगा, ठीक है। बाकी आपने खुद इसकी कुछ भी इंग्लिश आप बना लेंगे थोड़ी बहुत, और वो लिख लेंगे आप, बट इस डायग्राम को आपको समझना ज़रूरी है। साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट जो होता है हमारा, ये इसकी मैंने शॉर्ट फॉर्म इसको लिखते हैं ना, तो इसको मैंने फुल एक्सप्लेन करके लिखा है, तो उसको आप देख लेंगे। तो ये एक सेकंड मैसेंजर सिस्टम है। और अब इस डायग्राम पे आ जाओ, ठीक है, इस डायग्राम पे फोकस करो। मैं इसको जूम करके आपको दिखाती हूँ। अब आप लोग देख सकते हो कि ये जो स्क्वायर में मैंने बनाया हुआ ये एक सेल है, ठीक है, आप कंसीडर कर लो ये वो टारगेट सेल है, ठीक है। अब इस टारगेट सेल के ऊपर ये हमारा रिसेप्टर अटैच हुआ है, उसके साथ आगे हार्मोन कंबाइन हुआ और हार्मोन रिसेप्टर कम्प्लेक्स जो था वो हमारे पास बन गया है। अब क्या होता है कि इसी रिसेप्टर के साथ एक प्रोटीन अटैच होती है जिसको हम कहते हैं जी प्रोटीन। इस जी प्रोटीन के 3 सब यूनिट होते हैं। एक ये अल्फा सब यूनिट है, ये आप देख सकते हो, एक ये वाला बीच वाला गैमा, और एक ये बीटा सब यूनिट है। ये 3 सब यूनिट से ये जी प्रोटीन मिलकर बनी हुई होती है। अब हार्मोन जैसे ही आके इसके साथ अटैच होगा तो ये जो 3 सब यूनिट है ये आपस में टूट जाएंगे। ये टूट जाएंगे इस तरह से कि ये जो बीटा और गैमा है ये 2 सब यूनिट अलग हो जाएंगी, और अल्फा सब यूनिट जो होगा वो यहीं अटैच रहेगा। अब यही अल्फा सब यूनिट एडिनाइल साइक्लेज के साथ जाके अटैच होगा। एडिनाइल साइक्लेज एक हमारा रिसेप्टर ही है, ये एक ऐसा हार्मोन है, या आप ऐसे कह सकते हैं कैसे मॉडिफाइड हार्मोन है, जो कि जितनी भी एटीपी होगी सेल के अंदर वो उसको कन्वर्ट कर देता है साइक्लिक एएमपी में, ठीक है। तो इसका काम ही यही है कि इसने ये काम करना है। और ये एक्टिवेट कब होता है, जब इसके साथ सिर्फ अल्फ़ा जो सब यूनिट है जी प्रोटीन का वो आके अटैच हो। वो जैसे आके अटैच होगा ये एटीपी को साइक्लिक एएमपी में कन्वर्ट करेगा। अगर अल्फ़ा सब यूनिट आके अटैच नहीं होगा तो ये एक्टिवेट नहीं होगा, ठीक है। साइक्लिक एएमपी यहाँ तक हमारे पास बन गई है। अब साइक्लिक एएमपी ने करना है कि प्रोटीन काइनेज जो है उसको जाके एक्टिवेट करना है। जैसे ही ये प्रोटीन काइनेज एक्टिवेट होगी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो जाएगा। यानी फॉर एग्जांपल अगर ये हार्मोन आया और ये हार्मोन आया है सेल के अंदर ग्लूकोज को मेटाबोलाइज करने की, ग्लाइकोजन को मेटाबोलाइज करने के लिए, तो क्या होगा, प्रोटीन काइनेज एक ऐसे एंजाइम्स बनाएगा जिससे हमारा ग्लाइकोजन मेटाबोलाइज हो जाए, ठीक है। इस तरह से ये रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस किया जाता है। सिर्फ हार्मोन कम्प्लेक्स बना देने से काम नहीं होता है, उसके अंदर डिफरेंट एंजाइम्स एक्टिवेट होते हैं और उनकी एक्टिवेशन के बाद जाके कोई भी एक स्पेसिफिक जो काम है वो हमारा परफॉर्म होता है।
और रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होना कोई एक स्पेसिफिक चीज़ की तरफ मैंने इशारा नहीं किया है, कोई भी रिस्पॉन्स प्रोड्यूस हो सकता है। ठीक है, वो उस हार्मोन की नेचर पे डिपेंड करता है कि वो हार्मोन किस नेचर का है। ठीक है, वो हार्मोन जो चाहेगा सेल वैसा ही करेगा। ठीक है, प्रोटीन काइनेज वैसा ही एंजाइम बना देगी और वैसा ही काम होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सो अब हमारे ये दिया हुआ है कि कौन कौन से रिस्पॉन्स प्रोड्यूस होंगे साइक्लिक एएमपी से। तो ये मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी को चेंज कर सकता है, कुछ सिंथेसाइज कर सकता है सब्सटेंस सेल के अंदर ही, और कुछ सिक्रीशंस कर सकता है टारगेट सेल के अंदर। सो इस तरह की ये चेंजिंग ये ला सकता है। यही चेंजिंग जो है ये किससे स्पेसिफाई होगी? हार्मोन से। हार्मोन बताएगा कि तुमने कोई चीज़ सिंथेसाइज करनी है या नहीं करनी, तुमने कोई चीज़ सिक्रिएट करनी है या नहीं करनी, तुमने क्या करना है। मतलब हार्मोन पे डिपेंड करता है कि रिस्पॉन्स किस तरह का होगा। अब कुछ और सेकेंडरी मैसेंजर है। एक तो हमने पढ़ा कि साइक्लिक एएमपी, और साइक्लिक एएमपी ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा कुछ और भी मतलब सेकेंडरी मैसेंजर सिस्टम हैं पड़े हमारे पास। उनमें से दो हैं हमारे पास, कैल्शियम कैल्मोडिन और इनोस्टोल ट्राइफॉस्फेट। तो कैल्शियम कैल्मोडिन की अगर हम बात करें तो ये कैल्शियम कैल्मोडिन की डायग्राम है। ये मैंने दो स्मूथ मसल्स बनाए हैं, एक ये स्मूथ मसल है, एक ये स्केलेटल मसल है। ठीक है, आपको पता है कि स्मूथ मसल और स्केलेटल मसल में फ़र्क है। सो अब स्मूथ मसल में आपके पास होता है